ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ مارکہ حق کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاڑکانہ میں شاندار میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کو یادگار بنانے کے لیے پاکستان کے نامور گلوکار ساحر علی بگا، حدیقہ کیانی، تحسین سکینہ اور دیگر فنکاروں نے اپنی سحر انگیز آواز میں سما باندھ دیا۔ شرکا سے بھرپور داد وصول کی۔ تفصیلات علی گل ڈیتو کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مارکہ حق کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سردار سہیل انور سیال، سردار طارق انور سیال اور چیئرمین دلی ٹاؤن شارق انور سیال کی جانب سے پولیس ٹریننگ سینٹر لاڑکانہ کے گراؤنڈ میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پارٹی رہنما، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ پورا گراؤنڈ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس موقع پر پاکستان کے معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی، شہرت یافتہ سنگر ساحر علی بگا اور دیگر نامور فنکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ یہ پاکستان کی فتح کا دن ہے، یہ پاکستان کی فتح کی رات ہے۔ آج کی رات دشمنوں پہ ایسی بھاری رات تھی جو اس کے بعد وہ سیدھا کھڑے ہونے پائے۔ پاکستان آرمی نے، پاکستان نیول فورس اور پاکستان ایئر فورس نے دنیا کو کر کے دکھایا کہ پاکستان کی فوج افواج جو ہے پاکستان کی انچ انچ کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ آرمی چیف ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر نے دنیا کو کر کے دکھایا کہ جو پاکستان کے عوام اس پہ اعتماد کرتی ہے، وہ اعتماد جو ہے وہ گھوکھلا اعتماد نہیں ہے، وہ یقین رکھتی ہے اپنے آرمی چیف پہ، اپنے فیلڈ مارشل پہ کہ ہم سکون سے سو رہے ہیں کیونکہ ہمارا فیلڈ مارشل جاگ رہا ہے، ہم سکون سے سو رہے ہیں کیونکہ ہمارا نیول چیف جاگ رہا ہے۔ اس کا پروگرام مارکہ حق جو ہمارے پاکستان کے فوجیوں نے اور ہر پورے پاکستان کے ماؤں بہنوں کی گاؤں سے جو ہم نے قوم نے، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی اور ہمیں داری کی، ہم نے جو اپنے دشمن کو شکست دی، اس کے حوالے سے آج جشن منا رہے ہیں۔ اس خوشی میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، پورا لاڑکانہ ہمارے ساتھ ہے اور دل کھول کے جشن منا رہے ہیں۔ یہی میں کہنا چاہوں گا۔ جو یہ مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بھرپور انداز ہم نے جنگ جیتی اور اپنے سے ایک بڑے دشمن کو ذلت کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اور ہم ہر سال اسی طرح پرجوش۔ آج کے دن ہمارا پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی اور مارک کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، یہاں کا انتظامیہ بھی بہت اچھا ہے اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے لاڑکانہ کے لیے۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب یہ بھی ہمارے لیے اتنی مسرت اور خوشی کا یہ دن ہے، اور دشمن جو ہے ہمارا وہ بھلے 150 کروڑ ہیں، ہم 22 کروڑ ہیں یا 25 کروڑ ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ لوگوں سے نہیں جرت سے اور ہمت سے ہوتا ہے، اور ان کو ہم نے بتا دیا کہ ہم تھوڑے صحیح لیکن تم سب پہ بھاری ہیں۔ تقریب کے دوران شرکا کا کہنا تھا کہ پاک فوج وطن عزیز کی سلامتی، خود مختاری و دفاع کی ضامن ہے۔ پوری قوم اپنے بہادر افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میوزیکل نائٹ میں قومی جذبے اور یکجہتی کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گل ڈیتو، NTN نیوز، لاڑکانہ۔ مارکہ حق کے موقع پر شہیدوں کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے پاکستان پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا۔ مزید تفصیلات عاقل خان کی رپورٹ میں۔ دنیا نے ہماری جواں مردی کو مانا اور دنیا کے تمام ممالک نے ہماری تعریف کی۔ ان خیالات کا اظہار پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے حیدرآباد میں پیپلز سیکریٹریٹ میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہی۔ مورکہ حق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کئی دہائیوں سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جن کی قربانیوں سے تاریخ فتح ہوئی۔ تو ہم کئی دہائیوں سے اس فتح کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ہمیں فتح ملی، اور اس کو بلا شبہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں ان شہداؤں کو بھی سلام ضرور پیش کرنا چاہیے جو انٹرنل سیکیورٹی کے لحاظ سے دہشت گردی کا مقابلہ کر کے پاکستان کو ایک سکسیسفل سٹوری دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مورکہ حق کے دنوں میں سوشل میڈیا پر عوام نے افواج پاکستان کو خوب سراہا۔
उन्होंने कहा कि फौज का ये कहना कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें, ये बात खुश आइंद है। तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट में होता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक एनएफसी अवार्ड का ऐलान नहीं किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि एनएफसी में सूबों का हक बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। एनएफसी एक आईनी जरूरत है, सूबों में मसाइल की तकसीम का फर्म है। लेकिन 2008-9 के बाद अभी तक एनएफसी अवार्ड नहीं अनाउंस किया गया। आइन में लिखा हुआ है कि एनएफसी में मिला हुआ सूबों को हिस्सा बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो, हैदराबाद डिवीजन के सदर आजिज धामरा, तारिक शाह जामुन और रहमतुल्लाह डोमकी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज, हैदराबाद। मुल्तान में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान बस्ती मलूक की तरफ से मरकजी दफ्तर अंजुमन ताजरान में तकरीब मुनक़िद हुई, केक काटा। तफसीलात बता रहे मुल्तान से नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर। जी साजिद, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी। इस वक्त मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से एक इवेंट का इनकाद किया गया है। मेरे साथ रऊफ मुकीम अंजुमन ताजरान सदर मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। जी सर, आगाह कीजिएगा। मार्का हक तारीखी फतेह की आज पहली सालगिरह है। इंडिया ने जो तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था, वैसे तो उन्होंने 4, 8, 16, 19 सन 2019 में भी हमला किया था। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और इंडिया को शिकस्त दी है, और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और भारत पाकिस्तानी फौज को हल्के में ना ले। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन जो मरकजी अंजुमन ताजरान है वो भी मौजूद है, इनसे भी मजीद जानते हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा। जी, हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले मार्का हक में इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी और पाकिस्तान के हर शहरी का सर फख्र से बुलंद किया। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर जो है ना, मरकजी अंजुमन ताजरान बस्ती लोग के दफ्तर में केक काटा जा रहा है और दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि पाक फौज हमेशा खड़ी है अवाम के लिए, और जो इंडिया है उसका जो भी पाकिस्तान के लिए मकसद हो, कभी भी पाक फौज कामयाब नहीं होने देगी। जी, दुनियापुर में मार्का हक की शानदार कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान दुनियापुर के सदर ख्वाजा मोहम्मद जमशेद के ज़ेर एहतमाम मरकजी काज़मी चौक से शानदार रैली निकाली, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए मरकजी काज़मी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अली रजा की इस रिपोर्ट। मार्का हक की शानदार कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर ख्वाज पाकिस्तान को खराज तस्लीम पेश करने के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा मोहम्मद जमशेद की ज़ेर एहतमाम मरकजी काज़मी चौक से शानदार रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए मरकजी काज़मी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वरीद सोमरे ने की। रैली में ख्वाज पाकिस्तान को खराज तस्लीम पेश करने के लिए सकाफती झूमर भी पेश की गई। रैली के शिरका ने फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाबंदाबाद के पुरजोश नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर मरकजी काज़मी चौक में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वहीद सुमरत, जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीज़न के नायब नाज़िम मुफ्ती असगर अली रिजवी। तकरीब में फ़ौज पाकिस्तान के नौजवान शहीद फैसल सदीक की वालदा मोहतरमा और शहीद आकिब हुसैन के वालिद मोहतरम खादिम हुसैन इल्मी ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वहीद सुमरो, SHO थाना सिटी इमरान उमर और सदर अंजुमन ताजरान की तरफ से केक काटा गया और मिठाई तकसीम की गई। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोगना कैप्टन रिटायर अली बिन तारिक की हिदायत पर SHO थाना सिटी इमरान उमर की निगरानी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 112 के नौजवानों ने भी ड्यूटी सर अंजाम दी। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकवतन के डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में पुरवकार तकरीब।
تقریب میں ضلعی افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، جبکہ شاندار آتش بازی نے جشن کو چار چاند لگائے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سیف خان کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں مارکہ حق بنیان المرصوص کی کامیابی کا جشن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا، جہاں شہریوں نے افواج پاکستان کی بہادری کو بھرپور انداز میں سراہا۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس گراؤنڈ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس گراؤنڈ میں ہونے والی تقریب میں ہر طرف سبز حلالی پرچموں کی بہار اور وطن سے محبت کا اظہار دیکھنے میں آیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے ہمیشہ ملک کا دفاع بہادری سے کیا اور پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان روڈی، NTN نیوز، پاک پتن۔ آنے وال میں مارکہ حق صرف جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکہ ہے۔ ضلع کونسل میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر سیمینار، ریلی کا انعقاد، پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مزید جانتے ہیں شیخ سہیل کی اس رپورٹ میں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ضلع انتظامیہ کی مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر سپاہی راؤ عدیل اکبر شہید کو خراج عقیدت اہل خانہ سے ملاقات اور قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ملیح رشید MN نے محمد خان ڈھا اور DPO محمد عابد نے مانی سیال میں سپاہی راؤ عدیل اکبر شہید کے گھر جا کر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ شہید نے 10 مئی 2025 کو نکیانہ سیکٹر پر کشمیر میں وطن عزیز کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وفد نے شہید کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نمائندہ NTN نیوز شیخ سہیل خانیوال۔ ملتان میں مارکہ حق بنیان المرصوص کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد، جس میں CPO ملتان صادق علی ڈوگر نے SSP آپریشنز حیدر علی کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CPO صادق علی ڈوگر نے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں ملتان سے نمائندہ ملک ساجد کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں مارکہ حق کے حوالے سے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں CPO ملتان صادق علی ڈوگر اور SSP آپریشن حیدر علی نے شرکت کی۔ CPO ملتان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاک فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں نے ملک سلامتی، استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے ہمیشہ صفحہ اول میں کھڑے نظر آئیں گے۔ پوری قوم اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب میں مختلف شعبات کی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جبکہ شرکا نے پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے حق میں بھرپور اظہار یکجہتی بھی کیا۔ ملک ساجد کھوکھر، NTN نیوز، ملتان۔ ضلع انتظامیہ کی مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر سپاہی راؤ عدیل اکبر شہید کو خراج عقیدت اہل خانہ سے ملاقات، قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مزید جانتے ہیں شیخ سہیل کی اس رپورٹ میں۔ مارکہ حق صرف جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکہ ہے۔ ضلع کونسل میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ملیح رشید کی زیر صدارت منعقدہ سیمینار میں ارکان اسمبلیز، DPO، سرکاری افسران، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ملی نغمے اور تقاریر اور ٹیبلوز نے شرکا کا جوش بڑھا دیا، جبکہ مقررین نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اقتدام پذیر پر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں کے ساتھ ریلی نکالی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ سہیل خانیوال۔ ڈاکٹر نے 14 سالہ معصوم بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ رنالہ خرد کے نواحی گاؤں میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک سنگدل ڈاکٹر نے مبینہ طور پر 14 سالہ ملازمہ کو تشدد کر کے قتل کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ مشتاق احمد بھٹی سے، جو اس وقت متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مشتاق، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خرد کے نواحی گاؤں میں، جہاں پہ انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ ناظرین، 16 سالہ بچی جو کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے اسلام آباد جا کے کام کرتی ہے۔ کس کے گھر میں جا کر کام کرتی ہے؟ اس کے گھر جا کر کام کرتی ہے جس کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اتنا وہ ظالم
वहशी दरिंदा जिसने 16 साल मासूम कली को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जिसको बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि असल क्या मामला बना। भाई मेरी भतीजी है, कौसर नाम है उसका, 16 साल उसकी उम्र है। वो डॉक्टर अतीब के घर इस्लामाबाद में काम करती थी। तो उन्होंने फोन किया कि आप लोगों की बच्ची बीमार है, उसे आकर ले जाए। हम तैयारी करने लग गए कि उसे जाके ले आते हैं। 5 मिनट के बाद कॉल आ जाती है कि आप लोगों की बच्ची की डेथ हो गई है। तो हमने कहा कि हमें एड्रेस बता दें कि बच्ची कहाँ है, किस हॉस्पिटल में हम लोग जाके ले आते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप लोग इस्लामाबाद आओगे तो हम लोग उसे ले आपको बता देंगे, आपको रिसीव कर लेंगे। उसके बाद भाई उन्होंने फोन बंद कर लिए। पुलिस की मदद से हम गए हैं हॉस्पिटल, फैमिली होली हॉस्पिटल गए हैं। वहां जाकर हमने अपनी बच्ची को लिया। उन्हें हमने कहा कि हमारी बच्ची दें, तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों के 10,000 रुपए है और अपनी बच्ची को ले जाएं, यहाँ पे कोई हंगामा वगैरह नहीं करना, वरना हम लोग आपके बुरा पेश आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा फैमिली की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि वो जो मुल्ज़म पार्टी है वो इंतहाई असर रसूख वाली है, हमें उनसे खतरा है। एक तो उन्होंने हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद हमें जो है वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम आपके साथ बुरा पेश आएंगे। तो मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये गुजारिश है कि खुदारा इस फैमिली को महंगाई से परेशान हाल आवाम को कोई बड़ा रिलीफ तो ना मिल सका, पर हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर रात की तारीकी में पेट्रोल पर बम गिरा दिया, जिसकी वजह से उबाड़ू के शहरी शदीद परेशान हो गए। उनका कहना है पेट्रोल महंगा होने से अखराजात डबल हो गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ सद्दाम हुसैन मसारी से। जी सद्दाम, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात एक और बोझ डाला गया। 15 रुपया डीज़ल महंगा कर दिया गया, 14 रुपया 92 पैसा पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया गया। अवाम पहले से ही महंगाई से दो चार हो चुका था। हुकूमत की जानिब से एक और बोझ डाला गया। उबाड़ो का एक हमारे साथ शहर, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। गरीब बंदे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। पहले 500 का डलवाते थे, अभी 1000 रुपये का डलवा रहे हैं। ये देखो सारा दिन फट्टे चला रहे हैं। डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। मरियम नवाज साहिबा, पेट्रोल सस्ता करो और डीजल भी सस्ता करो। समझिए गरीब बंदे हैं, किधर जाएं, 500 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये खर्चा हो जाता है। जी बिल्कुल, शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था जो पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने से हमें और मुश्किलातें बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से और सदर पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं जो पेट्रोल और डीज़ल को कम किया जाए ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात शिद्दत इख्तियार कर गए। अशिया खुर्नूश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। दूसरी जानिब किसान पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान हैं। हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त किसान के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, वफाक हुकूमत की जानिब से जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, तो वहाँ पर दूसरी एशिया खुदनोश की चीज़ों के साथ साथ किसान भी बहुत परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं क्योंकि अब कपास की फसल जो इन्होंने बिजाई करनी है तो इनको कितनी मुश्किलात का सामना होगा और ये किस तरह उसको मैनेजमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बार बार बढ़ने की वजह से किसान जो है वो एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल ही पिस चुका है। इससे पहले जब हम गंदम की कटाई कर रहे थे तब भी बार बार पेट्रोल बढ़ने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना था। अब कपास की बिजाई कर रहे हैं तो अब दिन ब दिन जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे हमें बिजाई में भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो ज़मीन तैयार करने वाले हैं वो भी अपने रेट्स डबल कर चुके हैं। जो बीज है, खाद है, वो भी हमें डबल रेट्स पर मिल रही है। तो किसान एक ऐसा तबका है माशरे के अंदर जो इस महंगाई की बिल्कुल डायरेक्ट लपेट में है और इस वक्त बड़ी परेशानी की हालत में है। हुकूमत वक्त से ये इल्तमास है, गुजारिश है कि फ़ौरन हमें जो है वो रिलीफ़ फराहम किया जाए ताकि हम अपने कपास की बिजाई जो है उसे मुकम्मल कर सकें, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। जी, आपने किसान की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी यही इल्तिजा है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। तो लिहाजा हमारी
हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है, पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें बढ़ती जा रही है इनको कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपनी बाआसानी जो फसल है वो काश्त कर सकें। जी। माँ वो हस्ती है जिसका कोई मोल नहीं, माँ के पैरों तले जन्नत है। आज हम जिस मुकाम पर हैं ये सब हमारी माँ की दुआओं से है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। 10 मई 2026 दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। माँ वो हस्ती है जिसका कोई मोल नहीं। माँ वो हस्ती है जो खुद तो भूखी सो जाती है लेकिन कभी बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। माँ वो हस्ती है जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। आज हम सब जिस मकाम पे हैं, चाहे वो कोई ब्रिगेडियर है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे कोई जर्नलिस्ट है, ये सब हमारी माँओं की दुआओं का सिला है। आज इस मौके पर मैं सब माँओं को खराज तस्लीम पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनका साया हम पर कायम रखे। और जिनकी माएँ वफात पा गई हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। कैमरामैन टीम के साथ अली रज़ा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। रिनाला खुर्द में थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर अलमदीना वेलफेयर सोसाइटी पंजाब के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया से बचाव और अवामी आगाही के हवाले से वॉक का इनेकाद किया। वॉक की क़यादत सदर अलमदीना वेलफेयर सोसाइटी ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ादरी ने की। मज़ीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौका पर अलमदीना वेलफेयर सोसाइटी पंजाब के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया से बचाव और अवामी आगाही के हवाले से एक खसूसी वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ की क़यादत सदर अलमदीना वेलफेयर सोसाइटी पंजाब ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ादरी ने की। उस मौके पर डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने थैलेसीमिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अवाम में शऊर उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ादरी ने अपने खिताब में कहा कि थैलेसीमिया एक ख़तरनाक मगर काबिल एहतियात मर्ज़ है जिससे बर वक्त टेस्ट और आगाही के ज़रिए बचाव मुमकिन है। उन्होंने नौजवानों और वालिदैन पर जोर दिया कि शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट को यकीनी बनाएं ताकि आने वाली नस्लों को इस मर्ज़ से महफूज बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अलमदीना वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अलमदीना हस्पताल एंड मैटरनिटी होम की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए की जाने वाली खिदमात और काविशें काबिल तहसीन हैं। इदारा थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मदद, इलाज और आगाही के लिए मुसलसल अमली इक़दामात कर रहा है ताकि मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। वाक़ शुरा ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो मुआशरे में सेहतमंद और महफूज ज़िंदगी के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़, रिनाला खुर्द। ईद उल अज़हा के करीब आते ही ढेरकी में भी सिंध और पंजाब के खूबसूरत कीमती जानवरों की सबसे बड़ा बकरी मंडी सज चुकी है, जहां शहरी सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए जानवर की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रज़ा सुमरो से। जी अली रज़ा। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान करीब आते ही ढेरकी में सिंध और पंजाब की सबसे बड़ी बकरा मंडी सज चुकी है। लोग यहां पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बकरे खरीदने पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ढेरकी की बकरा मंडी में। यहां अगर बात करें तो व्यापारियों की जानिब से छोटे छोटे जानवरों के बड़े बड़े दाम मांगे जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर व्यापारियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि महंगाई की वजह से जो है ना हमें अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। आइए मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर एक शेरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और बकरों की कीमतों के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस दफ़ा रेट पिछले 3-4 साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैं और हम भी यहाँ पे कुर्बानी के लिए आए हैं, बकरा ख़रीदने के लिए। कोई अच्छा सा खूबसूरत सा जानवर हमें मिल जाए, लेकिन रेट सुन के तो हमें जो है ना वो पहले की तरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बहस करनी पड़ती है रेट के लिए। तो लेकिन क्या करें, सुन्नत इब्राहिमी है, ये हमने करना ही करना है। तो कोशिश करते हैं अच्छा सा हमें बकरा मिल जाए कोई, तो हम उसको लेके तो अपने सुन्नत अदा करें। जैसा कि आपने यहाँ पर शेरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर जो है ना सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बकरे खरीदने पहुँच गए हैं, लेकिन पिछले साल के बनने से इस साल जो है ना महंगाई डबल हो चुकी है। और क्या करें, जो है ना सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदा ज़रूर करनी है। जी। बहावलपुर में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की तारीख़ी फ़तह का 1 साल मुकम्मल होने पर मरकज़ी रैली निकाली गई। रैली ड्रिंग स्टेडियम से फरीद गेट तक निकाली गई, जिसमें शहरियों ने कौमी परचम उठाकर अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया।
इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, RPO गाजी सलाहुद्दीन और दीगर आला अफसरान भी शरीक थे। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा कामरान अली। जी कामरान। ज़िलाई इंतज़ामिया बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की तारीखी फ़तह का 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार मरकज़ी मार्का हक रैली का इनेकाद। रैली ड्रिंग स्टेडियम से फरीद गेट तक निकाली गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। रैली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया, RPO गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा, DPO अब्दुल वहाब और वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान भी मौजूद थे। रैली में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात, ख़वातीन, नौजवान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका कौमी परचम उठाए वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती और फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर इज़हार तशक्कुर करते रहे। रैली के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल निगरानी करते रहे ताकि शुरका को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि मार्का हक जुर्रत, कुर्बानी, अज़म और कौमी इत्तेहाद की अजीम दास्तान है। पाकिस्तान ने इस मार्के में हर महाज पर कामयाबी हासिल करके तारीख रकम की और पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का अमली मुजाहरा किया। शुरका ने इस्तेहकाम, पाकिस्तान, कौमी सलामती और मुल्की तरक्की और खुशहाली के अज़्म का इरादा भी किया, जबकि शहर भर में कौमी परचमों, नारों और मिली जोश और जज्बे ने एक मुनफरिद मंजर पेश किया। कामरान अली, NTN न्यूज़ बहावलपुर। M&R सेक्शन B1H के डेली वेजेस मुलाजमीन 53 रोज़ गुजरने के बावजूद तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोश मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का मुश्किल हो गया इंतज़ाम। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कामरान अली से। जी कामरान। सेक्शन डेली वेजेस सरापा एहतजाज है, उनका क्या कहना है, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई क्यों एहतजाज? हाँ, आज का जो एहतजाज है ये हमारे जितने भी लोग हैं, वर्षा डेली वेजेस लोग हैं, बाकी तमाम लोगों को तनख्वाहें यकम को मिल जाती हैं। इनको आज 11 तारीख हो चली है, इनको 40,000 की बजाय 37,000 तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी आज तक नहीं मिली। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि इनको फिल फौर तनख्वाह दी जाए ताकि इन लोगों के, गरीबों के चूल्हे जल सके और इनके घर रोटी पक सके। इन लोगों के यकीन करें बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं कर सके, स्कूलों के बच्चों की फीस नहीं अदा कर सके। इन गरीबों लोगों का क्या कसूर है? इनके मकान किराए पे है। हमारी दोबारा हाथ जोड़कर इस्तदा है प्रिंसिपल साहबा से, MS साहब से कि इनको फिल फौर तनख्वाह दी जाए। देखिए जी, हमारे जो M&R के मुलाजिम है ना, उनको तकरीबन 52-53 दिन हो गए जो तनख्वाह जो सैलरी लास्ट टाइम सैलरी मिली थी वो मिली हमें इससे पहले मिली, इसके बाद अच्छा बाकी लोगों को मिल चुकी है तनख्वाह, जो रेगुलर है उनको मिल चुकी है। M&R के जो मुलाजिम है उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। तो हमारे इदारे से गुजारिश है कि हमारी फिल फौर तनख्वाह जो 40,000 है और 37,000 मिल रही थी वो नहीं मिली, तो वो काइंडली वो भी हमें दिलवाएं और हमारी तनख्वाह जो 40,000 है वो हमें 40,000 दी जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ये लोग इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए। हम डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, हमारे घरों के चूल्हे जो है वो इस वक्त ठंडे हो चुके हैं। आला इंतजामिया से जो है ना फिल फौर मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा जो मुतालबा वो जल्द पूरा किया जाए, हमारे तनख्वाह टाइम पर मुकर्रर कीजिए। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से समंदर में एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया। रैली में प्रेस क्लब समंदरी, सियासी समाजी शख्सियात, अलमुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन समंदरी, मरकज़ी अंजुमन ताजरान समेत ताजरों, तलबा, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए कौमी सलामती इस्तेहकाम के लिए नारे लगाए। समंदरी से देखते हैं उस्मान कादरी की रिपोर्ट। 10 मई मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से प्रेस क्लब समुद्री रजिस्टर्ड और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जो घंटाघर चौक से शुरू होकर थाना चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक में नारे लगाए और कतबे और बैनर उठा रखे थे। अल्लाह करीम ने एक साथ पहले जो मार्का हक के तौर पे हमें फ़तह नसीब फरमाई, आज हम उसका जश्न मना रहे हैं, उसकी याद मना रहे हैं और अपने पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। और ख़ास तौर फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर की क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान ने ये एक
एडवांस लेवल पे जंग लड़ी कि दुनिया इस पे हैरान हो गई। आज का जो दिन है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि तो हमारे पाकिस्तान के शेर दिल जवानों ने जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अपने से कई गुना बड़ी ताकत इंडिया की फ़ौज को ऐसो नाको चने चबाए कि उनके अपना जो सिस्टम थे वो भी तबाह किए, उनके जहाज़ मार गिराए और उनको ता क़यामत तक ये सबक दे दिया कि मुल्क पाकिस्तान ज़िंदा दिल कौमों का मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बुनियान मरसूस ये साबित करता है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। और हम ये साबित करते हैं कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम अपनी पाक फ़ौज के साथ है। समुद्री प्रेस क्लब रजिस्टर और यूनियन जनरल रजिस्टर के ज़ेर सदारत समुद्री में रैली निकाली गई है, जिसमें दीगर तंजीमों ने भी शिरकत की है, जिनमें अलमजहद फोर्स है, CR है। और ये जो रैली है ये मार्के हक की कामयाबी की है। और जो भी दुश्मन मैली आँख की तरफ पाकिस्तान की तरफ देखेगा हम उनकी आंखें निकाल देंगे। रैली में शरीक अफराद ने आखिर में पाकिस्तान और पाक फौज के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाक फौज के साथ खड़ी है और बुनियानुल मरसूस में का जो दिन है वो हर साल ये मनाती रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ढरकी में महंगाई का नया तूफान खड़ा कर दिया। शहरी महंगाई के बोझ तले दबे इंतजामिया के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद, प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रज़ा सुमरो से। जी अली रज़ा। जी बिल्कुल, देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ढेरकी में जो है ना महंगाई का बाजार भी सरगर्म हो गया है। यहाँ अगर बात करें तो ढेरकी में अशिया और दोनों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, जिससे ढेरकी के शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी की मेन मार्केट में। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, जिस वक्त पेट्रोल की कीमत 419 रुपये हुई है तब से हुकूमत ने गरीब आवाम के पेट पे लात मार दी है। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा, खाने पीने की अशियात गरीब की आवाम से पहुँच है। 700 रुपये दिहाड़ीदार वाला बंदा वो अपना घर का अखराजात चलाए, बच्चों की मेडिसन ले या बच्चों की तालीम पूरी करे, कहाँ पर जाए। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसी DC को पाबंद किया जाए, दुकानदारों को पाबंद किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। गरीब आवाम से 700 रुपये में काम नहीं चल सकता। क्या रेट लिस्ट दुकानों पर मौजूद है? रेट लिस्ट दुकानों में बिल्कुल भी मौजूद नहीं। अगर किसी से रेट लिस्ट मांगो तो ये कहते हैं आप जाके ऊपर से पता करें। ऊपर किससे पता करें? लिहाजा गुजारिश। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है ना खुद साख्ता महंगाई का बाजार भी सरगर्म है। इन्होंने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा किया है कि यहाँ पर ढेरकी में जो है ना प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जाए ताकि बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जाए और हमारी मुश्किलात भी कम हो सके। जी।